दोस्तों, वेलकम टू उदयपुर सिटी टूर। उदयपुर में देखने लायक कई अट्रैक्शंस है। अगर आप 2 दिन के लिए उदयपुर विजिट कर रहे हैं तो आपको क्या दिखना चाहिए? आज का ये व्लॉग सिटी टूर का पहला एपिसोड है, जिसमें हमने 5 मेजर अट्रैक्शंस के बारे में आपको बताया। इस व्लॉग के कुछ जानकारी अंग्रेजी में दिए गए हैं। हमें उम्मीद है आप ये व्लॉग एंजॉय करेंगे और उदयपुर सिटी टूर का प्लान बनाने में ये आपका मदद करेगा। तो चलिए पहला अट्रैक्शन की तरफ। ये टिकट काउंटर है। यहाँ से आपको सिटी पैलेस के लिए टिकट मिल जाती है। जो एडल्ट है, इंडियन फॉरेनर, दोनों के लिए टिकट आपका 300 रुपये करके टिकट है। तो आप पहले 300 रुपये का टिकट ले लीजिए। और अच्छी बात जो है, उसके अंदर आपका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं। अभी हम लोग बड़े पोल होते हुए अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग चिपोलिया पोल की तरफ जा रहे हैं। दोनों तरफ आपको काफ़ी सारे शॉप्स मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते चलते सिटी पैलेस के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसको राजस्थान के सबसे बड़ा पैलेस माना जाता है। चित्तौड़ पर बार बार हमला होने की वजह से महाराणा उदय सिंह II ने फैसला लिया कि मेवाड़ के राजधानी चित्तौड़ से उदयपुर स्थानांतरित किया जाए। सन 1553 में सिटी पैलेस का निर्माण शुरू हुआ और अगले 400 साल तक ये बनता गया। तो हम लोग अभी पैलेस के अंदर चलेंगे, तोरण पोल होते हुए। ये तोरण पोल है। ये इस तरफ तोरण पोल है और पीछे सूरज पोल है। पीछे देखिए, सूरज पोल आपको दिखाई दे रहा होगा। और हम लोग सूरज पोल को पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे तोरण पोल होते हुए पैलेस के अंदर जा रहे हैं। ये सिटी पैलेस की म्यूजियम का एंट्रेंस है। आपको यहाँ पे एक 360 व्यू दे देगा। अभी हम लोग म्यूजियम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आप सिटी पैलेस में आने के बाद एक छोटा सा पोर्टिको मिल जाता है आपको फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पे बेंची भी लगे हुए हैं। आप यहाँ पे बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हो। We are at the Dilkhushal Mahal ante room now. Dilkhushal Mahal literally means the palace of joy. There are beautiful miniature paintings in this ante room. This ante room is also known as Dilkhushal ka Parachna. Through a gate to the right, you can enter the Sheesh Mahal, which is a major attraction to City Palace. So let us go and have a look. Isn't it beautiful? This is precisely why the Sheesh Mahal tends to be so famous. This part of the palace is built in glass and crystals. The glass inlay work is also known as Kanch Ki Burj. This was built by Maharana Sangram Singh, who was the king from 1710 to 1732. Now we are inside Moti Mahal. This was built by Rana Karan Singh in 1628. ये जो डोर है वो आइवोरी से बना हुआ है, हाथी की दांत की बना हुआ डोर है। Thereafter, we arrive at the Diwani Khas or the private court. We are greeted with views of Charokhas and a tiled courtyard. On the way out, along a beautiful passage, we stop for a moment to appreciate the view of the Udaipur city and a large courtyard. A short downward descent brings us to the Surya Chopper, which is a royal assembly room built by Maharana Karan Singh. We proceed towards the Sukh Nibas built by Maharana Bhim Singh.
This chamber has beautiful frescoes and miniature paintings all over it. We turn right to enter the Moor Chowk. Intricate jharokhas and galleries make for a mesmerizing sight. Even today, the colors glow bright and the designs are exceedingly pleasing. Let us take you along on a panoramic view of this courtyard. Isn't it beautiful? Next, we entered the Manik Mahal. This used to be the enclosure for formal audience of the Ranas from Mewar. It has intricate glasswork all over it. Let us now have a closer look at the Moor Chowk. As you can see, this chalk consists of 3 peacocks. They are said to represent the 3 seasons of summer, winter and monsoon. It is said that these peacocks have been crafted with 5,000 pieces of glass which shine in green, gold and blue. Thereafter, we went to see an interesting collection of royal musical instruments. There were tanpuras and tabla and even some western musical instruments. After that, we went to visit a museum of ancient sculptures rescued from different places. We then reached the Gokul Niwas for an exhibition of royal garments which were not only stylistic but also very colorful. Finally, we reached a display of royal palanquins and carry chairs which are also known as tamjhams. These were very interesting to look at. We emerged into a large and sprawling and beautiful courtyard from where we reached the main entrance or Toran Pole. That was the end of our palace visit. अभी हम लोग लेक पिचोला के बोटिंग पॉइंट पे आए हैं. दिस इज़ द सरकारी बोटिंग पॉइंट. तो मैं जाऊंगा अभी टिकट लेने. हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं. यहाँ पे जो बोट राइड है उसका 150 रुपीज़ करके चार्जेस है. तो ये सरकारी बोट राइड है, प्राइवेट नहीं है, कॉरपोरेशन का है बोट राइड. तो हम लोग अभी बोट में चढ़ेंगे एक एक करके. So we are off to the boat ride of Lake Pichola. यहाँ पे एक बोट रेडी हो रहा है, सजाया जा रहा है. शायद कोई स्पेशल ओकेजन होगा उसके लिए. लग्जरी बोट है. दूर आपको दिख रहा होगा एट द हॉराइजन होटल लीला पैलेस. ये हेलीपैड है. यहाँ पे आपको सीधा उतारा जाता है और यहाँ से बोट से आपको फिर लेक पैलेस होटल लिया जाता है. तो श्वेता, कैसा लगा? बढ़िया. तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ लेक पिचोला और जो दूसरा लेक है फतेह सागर, तो शुद्ध देसी घी और डालडा में जो डिफरेंस है, फतेह सागर लेक का राइड और पिचोला लेक का राइड में इतना ही डिफरेंस है. बहुत सुंदर राइड है ये. एंड वी आर रियली हैप्पी दैट वी कुड टेक दिस राइड. ये राइड बंद था कोविड के लिए, आज ही चालू हुआ है. शायद से कल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन 30 तारीख को बंद था ये. उदयपुर का तीसरा अट्रैक्शन करडी माता का मंदिर. पर माता के दर्शन के लिए
आपको एक रोपवे चढ़कर मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा। ये रोपवे लेक पिचोला के बोटिंग पॉइंट के करीब ही है। तो बोटिंग करने के बाद हम चल पड़े मंदिर की ओर। अभी हम लोग करणी माता टेम्पल की रोपवे के अंदर है और बहुत साल बाद हम लोग रोपवे में चढ़े हैं। इस रोपवे से उदयपुर सिटी का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है एंड ट्रस्ट मी द व्यू वाज breathtakingly beautiful. We were amazed to see the view as the cable car was moving upwards. और हम लोग पहुंच चुके हैं करणी माता की मंदिर। ये मंदिर जाने का रास्ता है। पहले आप नीचे उतरोगे, फिर आप ऊपर चढ़ोगे। ये देखिए पीछे आपको गुंबद दिखाई दे रहा होगा। मैं उसके तरफ जा रहा हूँ। काफ़ी पथरीला रास्ता है। दूर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सिटी पैलेस और लेक पिचोला। दूर वो ताज पैलेस होटल है और ये लेक का व्यू। पीछे अरावली रेंज। ये आगे उदयपुर स्मार्ट सिटी। लेक पिचोला के कई सारे घाट हैं, जिसमें द मोस्ट फेमस इज कंगोर घाट। शहर के बीचों बीच ये घाट देखे बिना उदयपुर का सफर कभी खत्म नहीं हो सकता। एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट द कंगोर घाट इज ड्यूरिंग द सनसेट। You can see for yourself the setting sun creates an amazing artwork over the lake. अगर आप खुशनसीब हैं तो कांगोर घाट में शायद आपको परफॉर्म करते हुए कुछ फोक आर्टिस्ट मिल जाएंगे। We were incredibly lucky. एक जैम सेशन का क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। After good travel, you need good food. तो मेरे पीछे ये है सुखादिया सर्कल का मेन मार्केट, जहाँ पे सारे खाने का स्टॉल लगा हुआ है और इतने सारे खाने की चीज़ों को देखकर तो बस मैं पगला जा रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या खाऊँ आज। मंचूरियन खाऊँ, आलू पराठा खाऊँ, बटर पाव खाऊँ या फिर मसाला डोसा खाऊँ। आप ही बताइए मुझे क्या खाना चाहिए। सुखादिया सर्कल के फूड मार्केट में खाना खाना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम लोगों ने यहाँ पर कॉफ़ी, गोभी मंचूरियन और डोसा ट्राई किया।
खाना बहुत ही टेस्टी था और प्राइस वेरी रीजनेबल। सुखादिया सर्कल ऑफर्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, लेकिन टेस्ट या वैरायटी से बढ़कर स्पेशल है यहाँ के स्ट्रीट फूड खाने का एक्सपीरियंस। तो यह अट्रैक्शन उदयपुर के किसी भी आइटनरी में ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, ये था उदयपुर सिटी टूर व्लॉग का पहला एपिसोड। सेकंड एपिसोड में हम कवर करेंगे सहेलियों की बाड़ी, सास बहू टेम्पल, फतेह सागर लेक एंड बोटिंग एंड जगदीश मंदिर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना और चैनल सब्सक्राइब करना। हम जल्द ही लौटेंगे एपिसोड 2 के साथ। तब तक टेक केयर एंड स्टे वेल।